End of every dream marks the beginning of something new. After the disastrous performance in the AFC Asian Cup Qatar 2023, जहां पे performance 0-0-0 रहा, big question is this the end of the world for Indian football? It certainly isn't, because you need to look forward and move forward together. And the World Cup qualifiers, I won't say are knocking at the door, on the door, but round the corner. In the meantime, a promise has come from the head coach, Mr. Igor Stimac, in the post-match official press conference after the disappointing loss against Syria. He has promised that he would be taking Indian football to the third round of the World Cup qualifiers, which obviously makes us look at the World Cup qualifiers immediately. कुछ एंगल्स पे बोला कि डाइवर्ट किया जा रहा है attention from the disappointing loss and what people feel is lack of accountability. But looking ahead at the World Cup qualifiers, March पे हम 2 मैच खेल रहे हैं, back-to-back matches against Afghanistan, dates of which are 21st of March is away and 26th of March we play at home. कोच साहब बोला है, और कुछ सवाल एक ट्रू इंडियन फुटबॉल फैन से मेरे अंदर मुझे डिस्टर्ब किया जा रहा है. सबसे पहला सवाल, उस समय कोई हमें ये तो कोई नहीं आके समझाएगा बहाने के हिसाब से हमको नहीं मिला. क्या नहीं मिला? कैंप नहीं मिला. बिकॉज इट्स वेरी अनलाइकली कि 1 महीने का कैंप मिलेगा प्रायर टू द मार्च क्वालिफायर्स. Even a 15 days camp looks improbable, almost impossible. Even a 7-day camp, I'm not sure मिलेगा नहीं मिलेगा. शायद the players come in directly, maybe 2-3 दिन का practice session करके the team flies and we're playing an away match first. Will that be enough? The preparation time. क्योंकि आज के दिन पे जो लोग हमें समझा रहा है, उन लोगों को पता है कि उस समय टाइम ज्यादा मिलने वाला नहीं है, तो उस समय वो बहाना मेरे तरफ नहीं आनी चाहिए. मैं जो बोल रहा हूं फ्रेंड्स, फॉलोअर्स एंड फैंस, मेरी पर्सपेक्टिव में बता रहा हूं, माय पर्सपेक्टिव. आप सहमत हो सकते हैं, आप सहमत ना हो सकते हैं. प्लीज कमेंट में जाके आप अपना अपना ओपिनियन डालिए. शायद आपको लगता है अरे मैं तो एकदम ही गलत बोल रहा हूं, प्रिपरेशन टाइम चाहिए नहीं चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट. लेकिन प्रॉमिस जो है उस हिसाब से रियलिटी में क्या मिलेगा. दूसरी सवाल, अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेयर्स. अनफॉर्चुनेटली सम ऑफ द प्लेयर्स, 3 players, Ashik Kurunian, Jackson Singh and Anwar Ali, unfortunately sustained injuries and were not part of the India's AFC Asian Cup team. Abdul Sahal भी पूरा अवेलेबल नहीं था. Sandesh Jhingan picked up an unfortunate injury in the last match against Syria. They missed them. Their replacements who came in were good, played some good, delightful football. But if they were there, it would have added to the strength of the squad. कोई दुश्मन को कभी कोई इंजरी ना हो, और यहाँ तो प्लेयर्स की बात है. But are we certain about the availability of all of them? क्यों मैं पूछ रहा हूं? I want all of them to be coming back to training and getting back to league football as soon as possible. Professional players है. लेकिन यदि तीनों प्लेयर या चारों प्लेयर इंक्लूडिंग सहल अवेलेबल नहीं रहा, इंजरीज आ गया है, तब हमें यह तो नहीं बताया जाएगा वी आर स्टिल मिसिंग देम. ये मेरी सवाल है, क्योंकि लोग तो एक्सप्लेन करने के लिए बैठे हैं. चांसेस ये भी है कि their respective clubs would be going through a momentum and would be trying to sustain the momentum. Obviously इन लोगों को कोई ना कोई some other player would be taking their places. तो क्लब कोच का ये पर्सपेक्टिव रहेगा, इंडिपेंडेंस रहेगा और अथॉरिटी रहेगा एंड राइट रहेगा टू चूज हिज फर्स्ट 11, which means the players XYZ may directly not at all get a chance when they make a comeback and are ready for selection. शायद कुछ दिन उनको बेंच पे बैठना पड़ सकता है. उस समय ये तो फिर हमें नहीं समझाया जाएगा, ओ these players do not have much of game time, what do we do? ये तो मैच खेला ही नहीं, मैच फिट ही नहीं है, मेरा तो हैंड्स क्रिपल्ड है, पैर क्रिपल्ड है, what can I do? I'm totally helpless. So ये भी एक्सप्लेनेशन नहीं आनी चाहिए. सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? गलत तो मुझे नहीं लगता मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन के बताइए.
और ये जो अफगानिस्तान के साथ जो 2 मैचेस थे दिस ग्रुप getting into the third round of the World Cup qualifiers, mark the words which I am saying, the choice of words. It would be historic for Indian football if we move out to the third round. Historic, कभी हम लोग किए नहीं है. But given the group in which we have been clubbed, we have been drawn, it's not a big achievement. It's more or less taken for granted that we will be moving out. Because इस बार 4 टीम का ग्रुप है, नॉट 5 टीम का, which means 2 less matches, 1 less match, away match less है हम लोग का. And Qatar untouchable at the moment. We have had some good results against Qatar. Obviously they'll be topping the group. The other 2 teams, Kuwait and Afghanistan, were not part of the Asian Cup. They couldn't qualify. We are much ahead than them. ये भी हमें समझाया जाएगा, जो समझाया गया है कि अफगानिस्तान का प्लेयर्स बाहर खेलते हैं, अपब्रिंगिंग अच्छा है, क्वालिटी मच मोर, उनकी कस्प ऑफ ग्रेटनेस पे बिठा दिया जाएगा. बट उस कस्प ऑफ ग्रेटनेस को बिठाने के बाद भी मैं देखा कि अभी तक उतनी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अफगानिस्तान को अदर देन दैट सैफ चैंपियनशिप विन नहीं मिला है. मैं अफगान फुटबॉल को छोटा नहीं कर रहा हूं. एंड आई ऑल्सो नीड टू रिआइटरेट, डमाडोल चल रहा है अनफॉर्चुनेटली इन द अफगानिस्तान फुटबॉलिंग सेटअप. अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेयर्स लेके ह्यूज टेंशन है. किसका? कोच एशले वेस्टवुड का, हु नोज इंडियन फुटबॉल लाइक द बैक ऑफ हिज हैंड. कुछ इश्यूज चल रहा है. सो विल दे बी गेटिंग द प्लेयर्स देयर? क्वेश्चन मार्क है. बट फिर भी हमें समझाया जाएगा, अरे हम तो पीछे है, वो आगे है. तो पहले से बोल रहा हूं, बुकमार्क करके रखिएगा इस वीडियो को आप लोग प्लीज, एंड स्पेयर अ थॉट फॉर द अफगान प्लेयर्स. आई हैव फ्रेंड्स इन द अफगान नेशनल टीम, क्वाइट ए फ्यू. उनकी जो दुख है ना कि देश में हम कभी नहीं खेल सकते ड्यू टू द अनफॉर्चुनेट सिचुएशन. मैं पॉलिटिक्स पे नहीं जा रहा हूं, इन देयर ओन कंट्री, एंड दे हैव क्वालिटी प्लेयर्स. अमीरी, बाप रे बाप, व्हाट अ वर्सेटाइल प्लेयर, ह्यूज फ्रेंड ऑफ माइंड, सच ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग. तो बट इंडियन फुटबॉल, वी आर अहेड देन अफगानिस्तान. बट इंटरनेशनल फुटबॉल एवरीथिंग इज टफ. तो इट वोंट बी ए ह्यूज अचीवमेंट, बट ऑब्वियसली हिस्टोरिक. तो 2 सवाल, तो एक है कैंप की ड्यूरेशन, सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स. अभी न्यू प्लेयर्स कौन आएगा? हमें यह समझाया गया है कि नया प्लेयर्स चाहिए. बोलने के बाद कोई लोग समझाया कि न्यू प्लेयर्स चाहिए. नो प्रॉब्लम, बिल्कुल चाहिए. यह नहीं है कि मैं ही खेलूं, ना ना ना, जिसको चाहिए खिलाइए आप. जो काबिल है वही खेलेगा और उनके लिए फुल सपोर्ट रहेगा. तो उस प्लेयर्स का स्काउटिंग कैसे होएगा, यह मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं. Will they be scouted from the Indian football ecosystem, from the ISL and the other leagues? Will they? तो ठीक है, but the most important question is who will scout them? क्योंकि ग्राउंड में तो पहुंचना पड़ेगा मैच देखने के लिए. समझदारों के लिए इशारा ही काफी है. कितने मैचेस लोग ग्राउंड से देखते हैं? गिनाओ भाई, जो लोग एक्सप्लेन करते हैं भाई साहब, गिनाओ मुझे. तो who will be selecting those players, scouting those players, those new players? अब ये चौथी सवाल है. मान लेते हैं न्यू प्लेयर्स आए हैं, मे बी दे वुड बी रिवॉल्विंग डोर, देयर इज अ नीड फॉर सम चेंजेस इन द टीम मैनेजमेंट फील्ड्स. क्यों नहीं, बिल्कुल. बट फिर क्या हमके यही समझाया जाएगा कि ये प्लेयर्स को तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, 4 साल 9 महीने इनको फिर टाइम देना पड़ेगा और फिर वही रिकॉर्ड प्लेयर बचेगा. हमें वक्त चाहिए, हमें वक्त चाहिए. दे कुडंट गेट इनटू द नेशनल टीम सेटअप, दे नीड मोर एक्सपीरियंस, दे नीड मोर मैचेस. क्या यही हमें समझाया, मुझे समझाया जाएगा? समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि और कितना टाइम, आप पूरी स्पेशल 26 को हटा के नया 26 लेके आओ. वी नीड इंस्टेंट रिजल्ट्स. द सोसाइटी नीड्स इंस्टेंट रिजल्ट्स, डिमांड्स इंस्टेंट रिजल्ट्स. तो उस बैलेंस को भी स्ट्राइक करना टीम मैनेजमेंट का काम है. चाहे लाल खेले, नील खेले, पीला खेले, काला खेले, सफेद खेले, वायलेट खेले, पर्पल खेले, जो भी खेले, द बैलेंस नीड्स टू बी इंटैक्ट इन अ मैनर दैट डिलीवर्स रिजल्ट्स. तो और भी हम लोग को यदि कोई समझाए कि टाइम चाहिए, वक्त चाहिए, शायद मैं बोलूंगा अरे भाई साहब माफ कर. और रिजल्ट सोसाइटी की छोटी सी सच्ची कहानी बोल रहा हूं. यस्टरडे एट ए कोचिंग कैंप इन नोएडा, मैं कोच नहीं हूं, जस्ट गॉन देयर टू मीट समवन नॉट फ्रॉम फुटबॉल फ्रेटर्निटी, डिफरेंट. बगल में फुटबॉल कोचिंग चल रहा था, आउट ऑफ हैबिट, नोइंग सम ओल्ड फ्रेंड्स आउट देयर, गया उधर.
द किड्स वर कमिंग इन, कोच साहब को पैर छूने के साथ एज आई वाज स्टैंडिंग विद हिम द स्मॉल किड, मेरा भी पैर छुआ, जीते रहो बेटा। मैक्सिमम 6 से 7 साल का बच्चा है। तो कोच साहब ने बोले कि इन सर को जानते हो, इसने सभी प्लेयर को जानते हैं, ये आपको मिला सकते हैं सुनील छेत्री जी के साथ, संदेश जिंगन के साथ। तो मैं हंसा। तो उसने कोच साहब को बोला कि मैंने नाम पूछा उनका, उसने बोला मैं नाम नहीं बताना चाहता। तो कोच साहब को उसने बच्चा ने बताया मैं क्रिकेट कैंप में चला जाऊंगा। सच्ची कहानी है। बोले क्यों? कोच बोले क्यों? टोन ऐसे था, क्यों जाओगे क्रिकेट कैंप में? बोले क्रिकेट जीतता है, फुटबॉल जीतता नहीं है। We were taken aback. I responded faster than anyone. His mom was there, the kid's mom was there. हालांकि कौन बोला फुटबॉल नहीं जीतता? आप जिताओगे हमें, आप लेके चलोगे, आप नेशनल टीम खेलोगे। हम तो बैठे हैं, जिस दिन आप खेलोगे बेटा नेशनल टीम पे, उस दिन हम जरूर जीतेंगे, और जीतते भी हैं, हम जीते भी हैं। द किड shook his head and said, क्रिकेट जीतता है, फुटबॉल जीतता नहीं है। He moved away and after some time he was playing and practicing with the kids. तो उनके दिमाग पे लगा कि क्रिकेट जीतता है, फुटबॉल जीतता नहीं है। तो रिजल्ट्स मैटर टू दैट किड। वो सोच रहे यार मैं तो जाके मेरी उम्र के दूसरे बच्चे के साथ क्रिकेट खेलूं जो हमें टॉन्ट करता है, फुटबॉल तो जीतता ही नहीं। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल फ्रॉम द सोसाइटी। हमें यह भी समझाया गया कि प्लेयर्स तो हमारा देश में बहुत है नहीं, ये पर्सपेक्टिव की बात है, नया प्लेयर्स चाहिए। यह भी बोला गया कि प्लेयर्स क्या क्रोएशिया से लेके आएगा? यदि लेके कोई आता है एंड द पासपोर्ट अलाउज, व्हाई नॉट। तो एक पुरानी बैक ट्रैक करके एक मेमोरी रिफ्रेश करना चाहता हूं आप सभी लोगों का, फ्रेंड्स, फॉलोअर्स एंड फैंस का। जब 4 साल 9 महीने 2019 अप्रैल मई में हम लोग को यही समझाया और बोला गया था कि ह्यूज रिसर्च करके आए हैं भारतीय फुटबॉल के बारे में, एंड द टैलेंट इन इंडियन फुटबॉल इज इमेंस। रिसर्च के बारे में बोला गया था, हम लोग भी बहुत खुश थे। अभी यदि बोला जाता है कि हमें समझाया जाता कि प्लेयर्स ही नहीं है, मैं एक छोटी सी सवाल पूछना चाहता हूं, तब आपकी रिसर्च ही क्या गलत था? सवाल बनता है ना, क्योंकि हमें तो यही समझा है कि ह्यूज पोटेंशियल है। इतने दिन हर कोई प्लेयर को सुपरस्टार हमें समझाया गया है, फिर बोला जा रहा है प्लेयर्स नहीं है। क्यों? यह भी बता दूं कि क्लब स्ट्रक्चर में कोई मैसिव चेंजेस नहीं आने वाला है। इट वोंट बी फॉर द सेक ऑफ द नेशनल टीम द क्लब कोचेस goes there and feels Indian footballers in certain positions which the national team management wants to। वो भी कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, PIOs भी नहीं आने वाला है। तो ये सिचुएशन हम लोगों का सेम रहेगा। तो उस समय फिर इस सिचुएशन डिस्पाइट द प्रॉमिस चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को टाइम तो बहुत मिला है। टाइम का भी बहाना जो है, बहुत सारे टीम्स को कम टाइम में बेटर परफॉर्म किया है। एंड इफ यू स्पीक अबाउट रिजल्ट्स, पैलेस्टाइन, सीरिया, क्या सोसाइटी से गुजर रहे हैं वो लोग, द टेंशन, बट दे आर अहेड ऑफ अस इन फुटबॉल। द पैशन नीड्स टू बी इग्नाइटेड, रीइग्नाइटेड। और एक सवाल मुझे बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे कॉल करके पूछा है, बहुत सारे इंडियन कोचेस, वो लोग पूछे सवाल, मैं आपके सामने ये सवाल रख रहा हूं। बोले नीलांजन भाई, ऑलमोस्ट 5 years हैज एवर एन इंडियन कोच बीन द नेशनल टीम कोच, और एक कोई इंडियन कोच यदि यहां पे ऐसे परफॉर्मेंस देता 0-0-0, हमारा घर में तो पत्थर पड़ता। बट यहां पे तो आप लोगों को एक्सप्लेन किया जा रहा है, हम लोग को एक्सप्लेन किया जा रहा है। 2-3 कोच ये भी बोला मुझे कि हम इतनी खराब है कि कुछ भी नहीं आता और सिर्फ कंप्लेन और एक्सक्यूज हम दे। ये लोग पूछा, मैं सोचा इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को बताऊं। तो मोटा मोटा यही है क्वेश्चंस मेरा। द सिचुएशन वोंट बी चेंजिंग even a minuscule percentage in the next 1.5 month as we speak ahead of the FIFA World Cup qualify। same setup रहेगा, same set of players available रहेगा, youth system से भी players लाएंगे तो same रहेगा, किसको कितना गेम टाइम मिल रहा है वो भी मिलेगा। ये भी हम लोग को उस समय शायद समझाया जाएगा, कुछ प्लेयर्स को तो गेम टाइम मिला ही नहीं है। बट फिर अगेन बहाना नहीं आनी चाहिए बीच में,
यही मैं आज बोल रहा हूं और यही मेरा सवाल है, क्या बहाना फिर आएगा? लोग हमें क्या समझाएंगे कि अरे ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, और फिर हम लंच खाते खाते डिनर की तरफ देख लेंगे। जारी रहेगा कवरेज ऑन योर ओन स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म बोल दादा बोल। नमस्कार, थैंक यू।